Good morning, children. Welcome to the online class of Mahila Seva Sadan Inter College. This is our first lesson in English. Today I will be taking the English language class and I will be teaching you synthesis of sentences. बच्चों, आज हम लोग synthesis की क्लास करेंगे. And let me tell you, स्लाइड पे आप देख सकते हो कि synthesis is the process by which a number of simple sentences are combined into one sentence, and the combined sentence can either be simple sentence, compound sentence or complex sentence. First of all, we will start with simple sentence. How to combine two or more than two simple sentences into one simple sentence. A simple sentence is that which has only one finite verb. So let's start how to combine two or more than two simple sentences into one simple sentence. There are various ways which is given below by which we can combine two or more than two simple sentences into one simple sentence. These different ways are by using a participle, by using infinitives, by using noun or phrase in opposition, by using absolute phrases, by using prepositions with nouns or gerunds, and lastly by using adverbs or adverbial phrases. बच्चों, तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल. व्हाट इज़ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब के द्वारा बनता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल. आप इस चीज़ को स्लाइड पे देख सकते हो. प्रेजेंट पार्टिसिपल बाय एडिंग ing टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ing लगाते हैं. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले हैविंग लगाकर बनेगा, एंड पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. तो सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पे. द एग्जाम्पल इज गिवन बिलो. ही वेंट टू द फील्ड, ही सॉ अ स्नेक. क्या देख रहे हो? ही वेंट टू द फील्ड, ही सॉ अ स्नेक. वह फील्ड में गया और उसने क्या देखा? स्नेक देखा. सेंटेंस से ही स्पष्ट है कि समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट. तो प्रेजेंट, तो you will add ing to the first form of verb and then you will complete the sentence, combine both the sentence. Going to the field, he saw a snake. Second is past participle. Now let's see the example below. He finished breakfast, he went to the office. अब यहाँ आपको क्लियर है कि इसने दो काम किया. पहले he ate his breakfast and then he went to the office. तो यहाँ आप क्या करोगे? सिंपल सा आपको वर्ब ऊपर दिख रहा है फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, तो उसके पहले आप हैविंग लगा देंगे. हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू द ऑफिस. यहाँ पे पास्ट आपको समझ में आ रहा है कि पहले उसने ब्रेकफास्ट खाया फिर वह ऑफिस गया. तो हाउ डिड यू मेक इट? हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू द ऑफिस. नाउ द थर्ड इज पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल. लेट्स सी द एग्जाम्पल बिलो. The train was delayed. It came 2 hours late. How am I combining it? The train, having been delayed, came 2 hours late. Why having been? Because you can see above, in the above sentence, the train delayed के पहले क्या लगा हुआ है? Was है. There is a helping verb. तो whenever there is an helping verb before the main verb, whether it is, was, am, are, तो you will add having been before the third form of verb. तो how am I combining it? The train having been delayed came 2 hours late. Clear? देखा? आपने देखा कि in the present participle आपने verb के पहले फॉर्म में ing लगाया. past participle में verb के थर्ड फॉर्म के पहले having लगाया, and past perfect participle में having been plus third form of verb. Now we come to the second way of combining
two or more than two simple sentences into one simple sentence by using infinitives. And what is infinitive? Infinitive is formed by just adding to before the verb. Remember, before the first form of verb. वर्ब के पहले फॉर्म के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बन जाता है. एग्जाम्पल इज गिवन देयर ऑन द स्लाइड. टू वॉक, टू ईट, टू स्टडी, टू स्लीप एक्सेट्रा. इसी तरीके याद रखिएगा, सिर्फ वर्ब के पहले फॉर्म में टू लगाकर इन्फिनेटिव बनता है. नाउ लेट मी गो विद द एग्जाम्पल. आई वेंट टू द रेस्टोरेंट. आई वॉन्टेड टू ईट पिज़्ज़ा. देयर इज अ टू सेंटेंस. आई वेंट टू द रेस्टोरेंट. I wanted to eat pizza. क्यों गए हम रेस्टोरेंट में? Because I wanted to eat pizza. अब आप देखिए यहाँ सिंपल वे में वहीं पे है, आपके सामने है. तो I went to the restaurant to eat pizza. अभी हमको लग रहा है हाँ, to eat pizza. Next sentence is we went to Agra. We wanted to see the Taj. We wanted to see the Taj. क्यों गए आगरा? बिकॉज हमें ताज देखना था. तो हाउ विल यू कंबाइन इट? वी वेंट टू आगरा टू सी द ताज. तो टू सी क्या हुआ? इन्फिनेटिव हो गया. ऊपर टू ईट क्या हुआ? इन्फिनेटिव हो गया. ही इज़ वेरी क्लेवर. ही कैनॉट बी चीटेड. यहाँ पे आप देखिए, जब वेरी वर्ड आ जाता है तो हम एडवर्ब टू का यूज़ करते हुए और इन्फिनेटिव के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. ही इज़ वेरी क्लेवर और ही इज़. तो हाउ विल यू कंबाइन इट? ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड. टू क्लेवर मीन्स बहुत वेरी के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं. टू बी चीटेड. अब यहाँ पे टू बी चीटेड. तो बच्चों, आज हम लोगों ने दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा दो मेथड के द्वारा. पहला पार्टिसिपल एंड दूसरा इन्फिनेटिव. स्लाइड को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और अपने बुक में, आपकी जो ग्रामर बुक है सेकेंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की भी आप यूज़ कर सकते हो. सेम बुक है. इफ़ यू डोंट हैव अ न्यू बुक यू कैन यूज़ योर फर्स्ट ईयर की बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो एक्सरसाइजेस होंगी पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव के ऊपर आप उसको करोगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी आपके पास डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं. इसके बाद कुछ होमवर्क दिया गया है, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा उन सेंटेंसेस को और उसको आप करेंगे. होमवर्क दिया, हाँ, देयर इज होमवर्क. कंबाइन दी सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. दोनों मेथड से है जो अभी आपको हमने बताया. पहला पार्टिसिपल एंड दूसरा इन्फिनेटिव. A is with the help of participles, जिसमें तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल. एंड B जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द इन्फिनेटिव्स. इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे. इसके अलावा आप अपने ग्रामर बुक से भी एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं. ध्यान दीजिए बच्चों, एक आप कॉपी बना लीजिएगा. यदि इस समय आप मार्केट नहीं जा पा रहे हो, कॉपी नहीं खरीद पा रहे हो, तो जो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉपी है ग्रामर वाली, आप उसमें इसको नीटली और अच्छी तरीके से आप इसको करेंगे. थैंक यू चिल्ड्रन.